لاس really sorry. Thank you بخت. موږ سره چې کوم دی د نان وربل کمیونیکیشن اراوند د ورلد والا اگزامپلز موږ سره تاسو وګورئ. موږ سره نان وربل کمیونیکیشن چې کوم په پاکستان کې دی هغه تاسو وګورئ چې کله هم دی چا سره ملاویږي نو دی چې کوم دی یو بل حق کوي، هاند شیک کوي کنه. تاسو اوس دا اگزامپل چې کوم دی خپل بزنس ورلد سره هم کوي اور پوینٹ اف ویو سره هم دا شزونه هند کې ساتي چې کله تاسو پاکستانیانو سره انټریکشن راځي in your general life یا from business perspective تاسو به غي سره څنګه انټریکشن کوي. زمونږ پاکستانیان هاند شیک کوي لکه مطلب حق کوي کنه. دا شزونه تاسو وګورئ. دین نه موږ سره بل اگزامپل د چاینا والا دی. چاینا والا چې کوم نه دی چې کوم نه اوایډ کوي باډي کانټیکټ strangers سره کنه. نو تاسو چې کله غي سره بزنس ډیلینګ راځي نو تاسو به غي سره تاسو ته پکار دي چې پته چې یاره زما د نان وربل کمیونیکیشن باونډریز سری دي سره خپل کارډز وغیرہ ایکسچینج کوي چې کله دی نوی کس سره ملاويږي کنه. دا غشزونه دي چې امپورټنس لري. دین علاوه موږ سره چې کوم دی د ارجنټینا والا وګوره. دی چې کوم دی خپل سر نه تا ته اندازه لګي تا سره چې کله ملاویږي نو هاند شیک کوي او تاسو د هډ خوځي کنه. د نوٹ شو مطلب نوٹ شو ریسپیکټ د دې د هډ د موومېنټ تا د ریسپیکټ یو علامت خای کنه، یو ساين درکې کنه. د نوٹ شو ریسپیکټ چې کوم دی ته ویل شي تاسو د هډ د موومېنټ ناګه نه تاسو ته پته لګي. ارجنټینا چې تاسو کا الحمدلله کاروبارونه درکړه چې کله تاسو خپل بزنسز انټرنیشنل کوي چې تاسو کله ارجنټینا ته چې په کار تاسو ته پته چې الته صرف هاند شیک کیږي او دا هډ موومېنټ نه ریسپیکټ شو کیږي. تاسو چې کله یو فرست ټایم یو بل انسان سره یا ارجنټینین چې کوم نېشنل دی ارجنټینا او سره په تاسو څنګه گریټ کوي فار د فرست ټایم. انډیا والا څنګه خلک انټریکشن کوي هغه چې کوم دی کله هم چا سره ملاویږي نو هغه نمسته والا ګسته جوړی د پکچر کې کلیر کټ کلیر دی کنه. دوه لاسونه راوځي کی او د خپل چې هډ چې کوم دی د لکشن ته سلایډلی باو کی کنه لکشن د ښکته کی او شیشه پورټری کوي ریسپیکټ شو کوي او ویلکمینګ تاسو ته وایي. دین علاوه تاسو د یو ایس ای والا وګوره دی هاند شیک کوي سمایل کوي او هلو یو بل ته وایي کنه. non-verbal communication must be understandable. دا ډېر زیات امپورټنس لري. دین علاوه چې د کوم خلکو ویکټري والا ساين یې هغه مختلف وي چې کله زمونږ د ټیمونو چې میچز وګټي کنه دا غي هم کتا سو خیال کړي دا غي هم سلیبریشن ساينز مختلف وي کنه. زمونږ ګوره کتا سو وګوره چې کوم مسلمانۍ چې کا سنچري مینچري وای یا 50 وای هغه سجده ولګي کنه. دا هغه سلیبریشن یو حد دی یو لیمټ دی کنه. او دین علاوه موږ سره چې کوم نه دا موږ سره هر کنټریز به مختلف حساب کتاب لري، مختلف یو انټریکشن لري او نان وربل کمیونیکیشن بوډي ګیسچر لري چې کله هم یو بل کنټریز ته بزنس وړو کنه نو موږ ته دا پویا پکار ده چې دا غي سره به زما مرسته څنګه راځي. زما چې کوم وربل کمیونیکیشن نه خو به سوپر افیکټیو وي خو چې کله نان وربل کمیونیکیشن یا تاسو فزیکلی انټریکشن هغه سره راځي هغه کم شیزونه به تاسو خیال ساتي کنه. او تاسو نه زه یو پوښتنه کوم چې د میډل ایست چې کوم کنټریز دي د دې څنګه نان وربل کمیونیکیشن دي چې کله انټریکشن تاسو سره کوي فار د فرست ټایم دې څنګه کوي. anyone have any idea about that? السلام علیکم سر جی. وعلیکم سلام. سر جی په ډېرې بخښنې سره ما کلاس لږ لیټ جوین کړ دغه آی کانټیکټ نشي بره کوم دغه سلایډونه پات چې دغه باندې د کرانا واچوي. بالکل به واچو ها. اوس ما دلته کې مونږ ته یو एग्जांपल پکار دی او تاسو سره به کوم نه ریکارډډ لیکچر هم شیر شي. مونږ اوس دا ویل چې نان وربل کمیونیکیشن د یو بل کلچر والا متپویا پکار ده. مونږ د مختلف کنټریز एग्जांपल्स وکړه کنه. لکه فار ایگزامپل تاسو ته بازا لایټ شنه اوورویو درکم
चमुंग दा ऊएल ची यूएसए के चिकला खलक मिलावी के दी हैंडशेक कई स्माइल कई और हेलो हुई है ना नो पर मिडल ईस्ट कंट्रीज की संग की अतल मिडल ईस्ट में Yes, लोग आपस में हग करके एक दूसरे को गले मिलते हैं। I was busy here. यार आवाज थोड़ी सी जो है ना वो मिक्सअप हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर वकार साहब मिडल ईस्ट में लोग एक दूसरे को हग करते हैं, गले मिलते हैं, और उनका हाँ स्टाइल ये है कि वो 2-3 दफा एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे इस तरह से जबरदस्त। मिलते हैं, और पर चीक्स पे एक दूसरे को किस भी करते हैं। हाँ और पता है कतरी लोग ये नाक जो है ना नाक ये लड़ाते हैं। ये जो जैसे कि अगर दुबई वाले लोग हैं जो कि मेरे साथ मलेशिया में थे, वो एक साइड पे 3 करते हैं, तीसरे दूसरे साइड पे 3 करते हैं। जब आप कतरी के साथ मिलोगे तो वो नोज मिलते हैं, हक करते हैं और फिर ये नोज लड़ा देते हैं। और ये सर सऊदी बिल्कुल सही कह रहे और सऊदी वाले जो है ना वो एक दफा करते हैं और दूसरी दफा करते हैं बस। देखें ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। जब आप उनके पास जाते हो उनके कल्चर को आप पहले से सीख लेते हो कि हाउ टू इंटरेक्ट विद देम, तो उनको ये आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव इमेज जाता है कि उनको पता लगता है कि इस बंदे को हमारे बारे में ज्यादा पता है, हमारे कल्चर के बारे में ज्यादा पता है, हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज के बारे में ज्यादा पता है। तो जो भी आपका सक्सेसफुल बिजनेस मीटिंग है तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। अगर आपकी डेली कोई रूटीन लाइफ उनके साथ कोई इंटरेक्शन है तो एक बड़ा इमेज और बड़ा अच्छा इमेज जो है ना पोर्ट्रे होता है उससे। वो कर सब रियली सॉरी, मुझे तो नहीं पता था कि आप भी क्लास में आए हुए हैं, वरना फिर हम वो मिक्सअप कर लेते उर्दू और पश्तो का। मैं सर अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ, अब्दुल वकार बासित। भी ऑनलाइन। वो सॉरी यार, यहाँ पे मेरे पास अभी कांटेक्ट शेयर नहीं हो रहे, मुझे नहीं पता लग रहा कि कौन बात कर रहे हैं ना। तो लास्ट टाइम जो हमारे पास वकार साहब थे वो कह रहे थे कि यार अगर उर्दू में भी हो तो अच्छा रहेगा, और मुझे आइडिया नहीं था कि वो भी आज शामिल है। और आपको कोई प्रॉब्लम है बासित बिल्कुल साहब? शामिल हूँ मैं इसमें। किसी चीज ऐसी चीज हो जो आपको समझ ना आई हो? हेलो क्लास। यार सोना नहीं है ना यार, प्लीज ये फीडबैक आप लोगों का बड़ा जरूरी है बिजनेस कम्युनिकेशन सर में। समझ आई है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें उर्दू में कोई अगर फास्ट एक वो चला लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जरूर कर लेते हैं, जरूर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फास्ट ट्रैक पे अगर चल पड़े तो सर कोई इशू नहीं है। ये कोई इतना डिफिकल्ट लेक्चर नहीं है, बस एक मतलब फास्ट ट्रैक पे सारी स्लाइड गो थ्रू करा लें। करवा लेते हैं, करवा लेते हैं, बिल्कुल करवा लेते हैं। और अफगानी स्टूडेंट्स तौस्ता मसलश्ता मुंगा कम एग्जांपल्स रखड़ या सगवर का तौस्ता मसलश्ता ناصر جيتول دير خيستا وازي examples. सही रहेगा ना? द सेल्फ No, sir. फ्लेक्सिबल। It's मुश्किल नशते sir. हाँ ज्यादा क्विक रिव्यू वर कोम पर उर्दू के कहना पख्तो के خوش होला چې کوم स्टूडेंट موږ سره اردو والا دي کنه دی ته پر به هم موږ چې کوم نه کنه نن دا لیکچر وته کمپلیټ شي। सही है जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ये बहुत अहमियत रखता है और इसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये आज हमारे प्रेजेंटेशन या जो लेक्चर है इसका एजेंडा है। इसमें हमें ये सीखने को मिलेगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, और फिर इसके बाद हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि वर्बल और नॉन वर्बल में क्या फर्क है। और बिसाइड दैट हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अहमियत क्या है और इसका पावर क्या है। इसके अलावा हमारे पास टाइप्स भी आ जाएंगी और इसके फॉर्म्स भी आ जाएंगी, और ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड वाइड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती कैसी है। और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि डिफिनीशन आप इसको कह सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको कहते हैं जिसमें अल्फाज ना हो, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, उसको हम सिंपली आसान अल्फाजों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये आ जाता है कि ये वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये इंटरकनेक्टेड है। और आप जो है ना एक चीज पे हम मोस्टली रिलाय नहीं कर सकते, करते भी हैं, जैसे कि गूंगे लोग हैं वो तो बात ही नहीं कर सकते लेकिन वो गेस्चर से आपको अपना मैसेज दे देते हैं। लेकिन इफेक्टिव तरीका हमेशा यही रहा है कि आप वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों का सहारा लेके अपना मैसेज पोर्ट्रे करो।
और ये इंटरकनेक्टेड है। इसके अलावा हमें डिफरेंस यहाँ पे ये मिलता है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें आपको आवाज सुनने को मिलती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको आवाज सुनने को नहीं मिलती। हमारे पास एक रिसर्च हुआ है जो कि अहमियत बताती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत अहम हिस्सा है व्हेन इट्स कम टू इंटरैक्शन। रिसर्च में ये बताया गया है कि 35% जो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन अपना किरदार अदा कर रहा होता है और 65% जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका रोल अदा करता है, अगर आप अपने पैगाम को अच्छे तरीके से दूसरे लोगों तक, अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फेशियल एक्सप्रेशन है, टोन ऑफ वॉइस है, मूवमेंट है, आपकी अपीयरेंस है, आई कांटेक्ट है, गेस्चर है और पोस्चर है। इन सारी चीजों को जो टाइप्स हमारे पास हैं इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। इस स्लाइड जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ हम अहमियत देख रहे हैं, इम्पोर्टेंस देख रहे हैं कि व्हेन इट्स कम टू द इंटरेक्शन तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसका मेन किरदार होता है एज कम्पेयर टू द वर्बल कम्युनिकेशन। तो 65% हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपका ऑडियंस पे अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए अहमियत रखता है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए आप एक दूसरे बंदे के माइंड में अपने लिए एक इमेज बनाते हो और इसी तरह आपको भी दूसरे बंदे का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आपके जहन में इमेज बनता है कि ये बंदा किस कैलिबर का है, कैसा है, ये मेरे साथ मिल कैसे रहा है। आपके पास एक क्लियर कट इमेज आ जाती है और आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आप बताते हो। समटाइम आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये बंदा आज जो गुस्सा है, बात करने के मूड में नहीं है, तो उसके फेस एक्सप्रेशन आपको बता रहे होते हैं। अगर कोई परेशान है या डरा हुआ है तो आपको पता चल जाता है कि ये डरा हुआ है, उसके फेस एक्सप्रेशन से आपको पता लग जाता है कि यार ये बंदा आज डरा हुआ है। ठीक है जी, ये इसके सर पावर जैसे है। आपकी बात सर जैसे आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, जैसे आपने तस्वीर दिखाई हुई भी बड़ा कुछ दिखा रही है, आप ना भी कहे तो बहुत कुछ दिखा रही है। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल। ये चीज बासित साहब बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो है ना, ये आज ही जो मैं ये पिक्चर्स वगैरह डालने की कोशिश कर रहा था वो इसलिए करने की कोशिश कर रहा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इस चीज का बहुत अहम रोल है। आप जो है ना खुद ब खुद अंदाजा लगा लेते हो कि ये सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है और ये क्या बात वगैरह चल रही है ना, तो ये से पावर कहते हैं, पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अलावा हमारे पास हमने पढ़ा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो हैं, एक है इंटेंशनल, एक है नॉन अनइंटेंशनल। जो हमारे पास इंटेंशनल है वो ये होता है कि अक्सर अगर आपने क्लासरूम में देखा होगा कि टीचर किसी को पॉइंट आउट कर लेता है कि यार आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल है, अगर आप किसी को स्माइल दे रहे हो तो मतलब इंटेंशनली आपको पता हो रहा होता है कि मैं जो है ना उसको स्माइल कर रहा हूँ। अगर कोई किसी के लिए आप क्लैप कर रहे हो तो उसके पीछे कोई इंटेंशन होती है कि वो बंदा कुछ पास कर चुका है या कुछ अचीव कर चुका है, या आपका मतलब आप फुल सेंसेस में होते हो और आप कुछ परफॉर्म कर रहे होते हो। उसको हम इंटेंशनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थे। जब आपको पता ही ना हो और आप जो है ना कुछ पोर्ट्रे कर रहे हो या कुछ बता रहे हो और आप सेंसेस में नहीं हो अपने, तो उसको हम ना अनइंटेंशनल कैटेगरी में लेके आ जाएंगे। अनइंटेंशनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हमारे पास जो एग्जांपल है, जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग जब कुर्सी या चेयर पे बैठते हैं तो उन्होंने अपने लेग क्रॉस किए होते हैं और उनको पता ही नहीं होता। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जब वो बात करते हैं तो उन्होंने अपने हाथ हाथ फोल्ड वगैरह किए होते हैं और उनको पता ही नहीं होता, मतलब उनके सेंसेस में नहीं होता और वो एक चीज पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ना टू टाइप्स आ गई। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे भी मैंने डाला हुआ है कि एक बंदा जो है ना अपने हाथ से बता रहा है और यहाँ पे मैं पूछ भी रहा हूँ कि मुझे ये बताएंगे ये इंटेंशनल है या नॉन अनइंटेंशनल है। तो यहाँ पे हमने विद एक्सप्लेनेशन ये जानने की कोशिश की कि ये हमारे पास इंटेंशनल है। यहाँ पे ये बंदा किसी को बोल रहा है कि यार मेरा जो बबल स्पेस है या बबल एरिया है या मेरा पर्सनल स्पेस है उसके अंदर ना आओ। तो ये इंटेंशनल आ गई। पेपर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके साथ ऐसे पिक्चर शेयर होंगी। ब्लैक एंड व्हाइट कलर तो नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा। तो उसमें ये आपके साथ आपने क्या करना होगा कि आपने जो है ना अगर वो इंटेंशनल है तो विद एक्सप्लेनेशन आपने देने हैं कि यार ये इंटेंशनल क्यों है। अगर अनइंटेंशनल है तो आप ये बताने की कोशिश करने कि ये अनइंटेंशनल क्यों है और ये
इमेज है या जो पिक्चर जो है ये क्या पोर्ट्रे कर रही है। और आज ये जो हम ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी डेली लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आपकी बिजनेस इंटरेक्शन के जब आपकी दुनिया के साथ होती है या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी के साथ मिलते हो तो उस हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। इसमें हमारे पास आई कांटेक्ट आ जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है, पोस्चर आ जाते हैं, हैप्टिक्स आ जाता है, टच आ जाता है, गेस्चर आ जाता है, पर्सनल स्पेस आ जाता है। इसको अभी हम वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। हम आई कांटेक्ट के बारे में ये हमने सीखने की कोशिश की कि अगर आप अमेरिकन कल्चर की बात करो ना तो आई कांटेक्ट आपका रिस्पेक्ट शो करती है और आपकी एंगेजमेंट अपने ऑडियंस के साथ शो करती है। और वो जो है ना, आप अगर आपके कोई प्रेजेंटर है और वो अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट नहीं रख रहा, तो जो ऑडियंस है उनका भी जो इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है, और वो फिर वो प्रेजेंटर को देख ही नहीं रहे होते, उनकी बात समझ ही नहीं रहती, क्योंकि वो कुछ और बता रहा होता है, लोग कुछ और सोच रहे होते हैं, और मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें हो जाती है, एक गैप डेवलप हो जाता है। तो जितने भी एफर्ट्स पर प्रेजेंटर डाल रहा होता है, जो नीचे ऑडियंस बैठी होती है, तो उसकी जो है ना कोई फायदा नहीं होता। इसकी एक अपनी एक वर्थ है। तो जब भी अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जाओ, तो आपका जिसके साथ आपकी मीटिंग है तो उसके साथ आई कांटेक्ट रखो, ताकि आपका ट्रस्ट भी डेवलप हो और इस बंदे को लगे कि इसमें कितना कितना कैलिबर है। जब भी आप इंटरव्यूज वगैरह में जाते हो तो वो ये आप सारी चीजें आपकी काउंट करते हैं। और अगर आप सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट भी हो ना, सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट भी हो और आप वहां पे जाते हो, और अगर आप उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो उनको लगेगा कि इस बंदे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है यार, ये क्या हमें अपने सर्विसेज देगा। तो ये एक सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें होती हैं जो कि बहुत मीनिंगफुल होती हैं, और इसी के ऊपर जो है ना फिर आगे जाके आपकी सक्सेस रेट वगैरह मेजर की जाती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है कि अगर आपका आई कांटेक्ट हुई तो उन बंदे को लगेगा इस बंदे में कॉन्फिडेंट नहीं है, ये या तो ये रट्टे मार रहा है, या कोई कोई और इसके साथ कोई मसला है, या इसके ऊपर हमारा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा क्योंकि इसका आई कांटेक्ट वीक है। भाई गॉड, मेरे साथ एक मलेशियन आया था, हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था। जब यहाँ पे हम पाकिस्तान में कंसल्टेंट के साथ मिले तो मुझे उसने एक बंदे के हवाले से कहा, यहाँ पे एक इनसाइट कंसल्टेंट के नाम से है फवाद साहब। उसने कहा कि हसन यार, ये बंदा बिजनेस में तो अच्छा होगा लेकिन मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता, वो इसलिए कि इस बंदे के साथ मेरा आई कांटेक्ट बिल्ड ही नहीं हुआ। ये उसके अल्फाज थे। फौजी साहब हमारे हैं, यहिया साहब, उसने मुझे ये कहा लिटरली। भाई गॉड, हालांकि हम डिनर्स पे भी गए, काफी सारी चीजें थी, काफी हमारे पास इनकी इन्वॉल्वमेंट रही, लेकिन जब हमारे बिजनेस की बातें वगैरह होती थी, हालांकि मैंने नोट नहीं किया था, उन्होंने नोट किया था कि हसन यार ये मेरे साथ आई आई टू आई बात नहीं करता, इसकी जो आई कांटेक्ट है वो मेरे साथ बिल्डअप नहीं हो रही, तो लिहाजा मैं इसको अपना एमओयू देता ही नहीं। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आप लोग लैकिंग करते हैं, और जो भी उनका एजेंडा होता है या जो भी उनका एम या ऑब्जेक्टिव होता है वहां पे ये कामयाब नहीं हो पाते। इसके अलावा हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ये कुछ मैं हमने पिक्चर में डाला हुआ है, स्लाइड में आपको नजर आ रहे होंगे। ये हर एक जो फेस एक्सप्रेशन है आपको एक मुख्तलिफ मैसेज दे रहा है, और मोस्ट कॉमनली जो हम लोगों को पता चलता है, जो हम दूसरे लोगों में देखते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि ये बंदा खुश है या खफा है, या इसको कोई मसला है या गुस्से में है। तो या मतलब आसान अल्फाजों में कि आपको आइडिया हो जाता है कि यार बंदे के साथ क्या चल रहा है। फिर इसके अलावा हमारे पास ये बॉडी पोस्चर की बात आ जाती है। ये पोस्चर ये दूसरों से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें हम सारी बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं, पूरे बॉडी लैंग्वेज को हम देख रहे होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी जब आप किसी जगह इंटरव्यू जाते हो, खासकर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह जो होते हैं, टीएटी हो गया, और ये जितने भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गई, जब ये करती है ना तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। तो इसमें वो आपकी देख रहे होते हैं कि ये बंदा कितना पानी में है, कितना डिफेंसिव है, कितना इसमें शाइनेस है, कितना इसमें कॉन्फिडेंस है, आपके चलने के स्टाइल से, आपके देखने के स्टाइल से, एज अ होल आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज का बिग पिक्चर देख रहे होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे भी 3 पिक्चर हैं, अगर आप देखो ना तो ये इसके आर्म झेल रहे हैं, कोई इस तरह पे रहा होगा, किसी क्या कर रहा होगा, किसी ने जो है ना ये हाथ इस तरह रखे होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना अलग अलग चीजें पोर्ट्रे कर रही होती हैं।
और यहाँ पे हमने हैप्टिक और टच के बारे में भी पढ़ा। टच ये होता है कि जब आप फिजिकली कांटेक्ट किसी के साथ बनाते हो, और इससे भी आपको पता चल जाता है कि दूसरा बंदा आपके बारे में क्या परसीव कर रहा है, उसकी क्या परसेप्शन है। हैप्टिक और टच में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। टच जब आप किसी के जाते हो तो आप हैंड शेक करते हो और आप अपना हाथ वापस ले चले जाते हो, और हैप्टिक जो है ना, वो आप समझो कि अगर आप किसी दोस्त के साथ मिल रहे हो तो आपकी ड्यूरेशन उसके साथ हाथ मिलाया हुआ या उसका हाथ पकड़ा हुआ अगर आप चल रहे हो तो उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है, मतलब आपके फिजिकल कांटेक्ट की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और टच के मुकाबले में। यहाँ से भी आपको ये पता चल जाता है कि बंदे के साथ आप हाथ तो मिला रहे हो और वो आपका हाथ किस हिसाब से ले रहा है, किस तरह उसको परसीव कर रहा है, वो कैसे आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो यहाँ से भी आपके ट्रस्ट वगैरह सारी चीजें, ट्रस्ट वगैरह जो है ना, आपको पोर्ट्रे हो जाता है कि यार ये बंदा मुझे सुनने के मूड में है कि नहीं, मैं अगर आया हूँ तो ये मेरे साथ बात करने के मूड में है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके माइंड में होनी चाहिए। और हैप्टिक इसमें सर हमेशा, मेरे ख्याल में ये भी शामिल होगा कि हम जिस तरह किसी से बात करते तो बाद में उसके कंधों पे हाथ रख देते हैं ना, एंड देन वी स्टार्ट वॉकिंग एंड टॉकिंग। ये चीज ये हैप्टिक की कैटेगरी में आ जाता है। और ये हमारे पास है, अगर आपने देखो ना, अक्सर ये हमारे दोस्तों के बीच हो जाता है। अगर हम किसी को दिलासा दे रहे होते हैं तो उसके शोल्डर पे हाथ रख रहे होते हैं कि भाई टेंशन ना ले, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप समझ रहे हो ना, तो वो उसका ट्रस्ट बनने के, उसका उसका उसको मतलब उसका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, या उसको जो है ना थोड़ा सा एतमाद में लेने के लिए, या फिर उसको जो है ना हौसला देने के लिए हम ये फिजिकली टच की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हम गेस्चर की बात कर लेते हैं। चलो इसको ये इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो लिमिटेड इंटरेक्शन होती है वो बिजनेस वर्ल्ड से कर लेते हैं कि अगर आपका हैंड शेक करना है वो टच में कर लेते हैं, और जो हैप्टिक है वो आपको थोड़ा सा, आप जो है ना फिर आपने सोशल लाइफ की तरफ ले आओ। जब आप सोशल लाइफ की तरफ आते हो, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करते हो, उसका हाथ पकड़ के जा रहे हो तो उसके शोल्डर पे हाथ रख के जा रहे होते, तो उसको हम हैप्टिक में ले आते हैं। और जो लिमिटेड होता है उसको बिजनेस वर्ल्ड में लेके आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी जगह पे मीटिंग के लिए जाते हो, बिजनेस मीटिंग के लिए, तो और आप हैंड शेक करते हो, अस्सलाम वालेकुम हैंड शेक करते हो, उसको हम टच कैटेगरी में लेके आ जाते हैं। ठीक है जी। और भी मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाए। इसके अलावा गेस्चर्स बहुत सारे हैं। एलिमिनाटीज वालों का भी अपना एक गेस्चर है, और विक्ट्री का भी हमारे पास अलग गेस्चर है। इस तरह हर एक चीज का अपना अपना वो होता है। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप थम्स अप का निशान बताते हो, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तो आप थम्स डाउन का निशान अपना आप जो है ना हाथ से शो करते हो। तो इस तरह की गेस्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये भी एक चीज पोर्ट्रे कर रही होती है। और आप अपने सर अपने हेड के मूवमेंट से भी बता रहे होते हो कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और हाँ यार मैंने खाना खाना है या मैंने खाना नहीं खाना ना। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे होते हैं ना, ये सारी एक जो है ना आपके पास ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास मोस्ट कॉमन गेस्चर्स हैं जो कि हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो भी कुछ शो कर रहे होते हैं। जैसे कि इमरान खान जब भी बात करता है तो वो एक उंगली निकाल के करता है और वो कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश होता है कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। तो उसकी एक कॉमन गेस्चर है जो हमेशा वो यूज कर रहा होता है। हमारे नवाज शरीफ साहब, इसका भी एक कॉमन गेस्चर है जो बता रहा होता है कि हम सब एक हैं और हम सब मिलके इनको भगाएंगे। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज से आप जान सकते हो। मुशर्रफ साहब को देखो, जब भी वो बात करता है तो वो अपने बॉडी से या अपने जो फिंगर उन्होंने फोल्ड की हुई है उससे बताता है कि यार पाकिस्तान की फौज बड़ी मजबूत है। या फिर वो ये बताता है कि जो उसकी पार्टी है उसके बारे में अगर कुछ पोर्ट्रे करना चाह रहा है तो वो अपने एक गेस्चर से बता रहा होता है कि यार ये चीज जो है ना हमारी जो पार्टी है वो बड़ी पावरफुल है, या जो भी हो। तो आप इस इमेज से पोर्ट्रे कर सकते हैं कि वो एक मूवमेंट को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट हो जाती है, जो जो आइडियोलॉजी है या जो उसकी फिलॉसफी है, या किसी डिस्क्रिप्शन में वो अपने आप को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कुछ पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने गेस्चर से। इन साहब को देखी, जरदारी साहब को, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ये हमारे एमपीएम वाले, इनका भी एक अपना ही कॉमन बॉडी गेस्चर है। यहाँ पे हम पर्सनल स्पेस की बात करते हैं। पर्सनल स्पेस को जो है ना
आप उसको बबल स्पेस भी कह सकते हैं। ये वो स्पेस होता है आसान अल्फाजों में, जितने एक इंसान के हाथ खुलते हैं ना, ये आपका पर्सनल स्पेस आ जाता है। और ये आपका हक है, अगर कोई इसमें आने की कोशिश करता है तो आप उसको दूर कर सकते हो। ये आपका हक है, ये आपका पर्सनल राइट है। और ये भी आप विदाउट सेइंग समथिंग आप किसी को बोल सकते हो। जब बिजनेस वर्ल्ड की बात आती है तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के पर्सनल स्पेस में एंटर ना हो और कोई आपके पर्सनल स्पेस में एंटर ना हो, ताकि आपकी बॉडी फ्रीली मूव कर सके और आप के ऊपर कोई प्रेशर ना हो। ये हमने फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अराउंड द वर्ल्ड कैसे होती है। हमने पाकिस्तान की एग्जांपल देखी, जब भी हम मिलते हैं तो गले मिलते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं, हाथ मिलाते हैं। खासकर हमारे ये ईद वगैरह का दिन हो गया, तो जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं नॉर्मली भी, जरूरी नहीं है कि ईद हो, तो हम ये सारी चीजें करते हैं। चाइना में फिजिकली कांटेक्ट अगर आप बनाते हो तो वो स्ट्रेंजर के साथ कभी नहीं करते। अगर आप बिजनेस डील कर ले जा रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपने कार्ड वगैरह एक्सचेंज नहीं करना, और सिर्फ कार्ड वगैरह एक्सचेंज करना है और कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं करना। मतलब वो अवॉइड करते हैं आजकल, तो वैसे भी करेंगे क्योंकि कोरोना भी वही से आया तो बढ़ भी रहा है पूरी दुनिया में, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपके लूप में होना चाहिए कि जब आप चाइना कल्चर में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे या कोई सोशली एक्टिविटी करने के लिए जाओगे, तो इन चीजों को आपको ख्याल करना चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन तो सही है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या प्रेमिसेस हैं उसको भी आपने देखना होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, ये अर्जेंटीना की बात आ जाती है। जब भी आपके साथ वो ग्रीट करते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो वो हैंड शेक करते हैं और अपने हेड को जो है ना, ये नोट शो रिस्पेक्ट, उससे आपके लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं। सर ऊपर नीचे करके आपको बता देते हैं कि यू आर वेलकम, और एक रिस्पेक्ट का मकाम होता है, तो वो आपको दे रहे होते हैं। इंडिया का आप देख सर लें अर्जेंटीना जाना चाहिए। जी। मैंने कहा सर अर्जेंटीना जाना चाहिए। हाँ, पिक्चर देख के ना सर चले जाते हैं ना। जब आप बिजनेस इतना बढ़ाओ अपना, वहां पे कोई आउटलेट खोल लेंगे फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आज जो हमारा टॉपिक है ना जी, ये मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपकी इंटरेक्शन बाहर की दुनिया के साथ हो, ये तो मैंने कुछ लिमिटेड डाली हुई है ना, हमारे पास बहुत ज्यादा ज्यादा कंट्रीज हैं अराउंड द ग्लोब। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए जब आप उनके साथ इंटरेक्शन में आओ। जैसे कि अभी इंडिया वाले लोग हैं तो वो जब भी ग्रीट करते हैं तो वो नमस्ते बोलते हैं, और हाथ जोड़ के आपको जो है ना अपना हेड नीचे कर लेते हैं, कि बो डाउन कर लेते हैं, कि मतलब रिस्पेक्ट भी शो करते हैं और आपको वेलकम भी बोल रहे होते हैं। ये पिक्चर में, पिक्चर जो है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको यहाँ से भी आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा यूएसए में आप देख लें, वो हेलो बोलते हैं, हैंडशेक करते हैं और स्माइल करते हैं। और ये इस पिक्चर में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल देने चाहिए कि यार मुख्तलिफ कंट्रीज के सेलिब्रेशन का भी अलग होता है। जब हमारे क्रिकेटर्स या मुसलमान जितने भी क्रिकेटर्स हैं, वो अगर सेंचुरी या 50 बनाते हैं या कोई विक्ट्री हासिल करते हैं तो वो सिजदे में चले जाते हैं। तो ये वो सारी चीजें जो है ना वो अपने बता रहे होते हैं कि यार ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और हमारे नॉर्म्स वैल्यूज में क्या है ना। तो ये चीजें बहुत अहमियत के हामिल है। और आज जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें हमने ये सब सीखने की कोशिश, मैंने बताने की, आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है कि वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है when it's come to your social life, when it's come to the business interaction। हमने रिसर्च भी देखा कि 65% आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस रखता है और 35% वर्बल कम्युनिकेशन रखता है। आई होप जो है ना ये सारी चीजें काफी आसान थी। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। हेलो बासित साहब, वकार। Yes, sir, I have a question. यस प्लीज। When we use social media, for example, Facebook, uh, we give heart or sometimes we give like in Facebook. What type of communication is that?
उसको भी हम, आप भाई बोल सकते हो कि ये हमारे पास नॉन वर्बल सोशल मीडिया कम्युनिकेशन आ गई, मतलब डिजिटलाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गई। आप मीडियम अलग यूज कर रहे हो लेकिन आप वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ चले गए। आपके साथ जितने भी इमेजेस आती है ना, या हंसी वाले या खफगान वाले या सैडनेस वाले, वो सारे आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म आपने अलग कर दिए। सही है जी, वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आप चले गए हो, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको आप यूज कर रहे हो, तो वो भी आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। थम्स अप, लाइक करना, थम्स डाउन, ना पसंद करना, ये सारी चीजें जो है ना आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। सर एक चीज मैं जस्ट ऐड ऑन कर देता हूँ, आपका मास्टर लेक्चर बहुत अच्छा है। जी एक चीज क्लास की इंफॉर्मेशन के लिए ऐड कर देता हूँ कि सर दुनिया में सबसे ज्यादा जो समझी जाने वाली जबान है ना, दैट इज हाँ, द नॉन वर्बल, मतलब द ऐसा ही लैंग्वेज है। ऑफ जेस्चर। तो दुनिया में सबसे ज्यादा समझी जाने वाली जबान जो है वो नॉन वर्बल ही है। ये बेस्ट एग्जांपल है। और ये कहा भी जाता है कि दुनिया में, अगर एक क्वेश्चन भी आया था कि यार दुनिया में ऐसी कौन सी जबान है जो उसको सब समझते हैं, तो उन्होंने सबसे कहा कि ज्यादा यार बोली जाती है, जो एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो वो कह देते हैं कि यार जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बोल लेते हैं, जो गूंगे हैं वो भी आपको अपना मैसेज वगैरह पोर्ट्रे कर लेते हैं। और इसकी जो है ना, ये देखिए ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंस में आ गई। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि यार इंपॉर्टेंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो आप ये भी उसको जो है ना लिख सकते हैं कि यार दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली जबान हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। सर एक चीज मेरे जहन में आ रही थी। जी प्लीज। सर इसका जो शेड्यूल है ये तो शेयर नहीं हुआ था पहले, कल मैं ग्रुप में देख रहा था कि टाइम 2 PM फिर 10 PM इस तरह था, तो ये आज क्लास जरा अर्ली स्टार्ट हो गई है, तो ये शेड्यूल पहले से तो या तो फिर मेरे पास नहीं आया, या फिर ये है कि आप लोगों ने क्लास मतलब विदाउट प्लान ये पहले स्टार्ट हुई है क्या? सर इसका थोड़ा बता सकते हैं? बासित साहब रियली सॉरी, असल के मैं दूसरे सिटी में रहता हूँ, तो मैंने ये स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि ये क्लास आज ले लेते हैं रात को ना, और मैंने आज जाना है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट वीक से देख लेते हैं, स्केड्यूल देख लेते हैं ना। मेरे पास भी अपडेटेड नहीं आया, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने इस क्लास को, लास्ट वीकेंड भी मैंने क्लास को इसी टाइम ये पर्टिकुलर क्लास ली थी 10 बजे। तो ये खैर सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन द थिंग इज, आज थोड़ी सी प्रायोरिटीज थी ना, मैंने कहा यार फैमिली से मिलने थे, 3-4 हफ्ते हो गए, तो मुझे 11 बजे फिर निकलना है। तो रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं और सर, सर नहीं, बिल्कुल सॉरी की बात नहीं है। सर आपकी मुझे भी रिकॉर्डिंग अभी तक ऑन है। इतना इशू नहीं है। बस ये मैं सिर्फ ये कहता कि अगर कोई इस तरह की होता है तो काइंडली उसमें ना शेयर कर दिया करें कि क्लास इतने बजे होगी एक दिन पहले या उस टाइम से। ये तो बाई चांस मैं, आप दूसरे शहर में जाना है, मैं दूसरे मुल्क में रहता हूँ, तो थोड़ा सा हाँ टाइम लगता है, थोड़ा सा इशू होता है, फिर ये अटेंडेंस जो है ना मैं फिर नहीं कर पाता। बिल्कुल ठीक है, चलो आपको मैं जरूर अपडेट कर दिया करूंगा। और थैंक यू सो मच। किसी को क्वेश्चन है इस हवाले से? बल सर सुख से पुख्ता न लरी, क्वेश्चन सर सुख पुख्ता न के सुख कवल गुआड़े। زما غږ درځي سر जी जी बिल्कुल राजी। سر دا کلاس تاسو مونږ ته بل مونږ خو غټه مسله را سره چې اخ کمیونیکیشن دی او کمیونیکیشن کې به مونږ هدف ته فوکس به انډرستانډینګ باندې کوو. نو دلته دا کلاس تقریبا 90% په اردو باندې و. زما خپل اردو چې ډېره خوښیږي خو زه په پوهېږم نه. نو که مونږ ته څنګه کوی بل کلاس په پښتو کې بل کلاس ارینج کوی چې څنګه وکړو؟ مونږ پښتو کې پہلا کلاس واغستلو، دا زمونږ دویم ځل چې کم دی اردو والا کلاس و. تاسو سره به ویډیو شیر مننه شي. شوی دی. سادي مخکې اول نه کله چې کلاس شروع شو په 8 بجې د افغانستان په ټیم باندې هغه وخت نه ټول کلاس پښتو به دغه سملګرو دا ریکوست ورته وکړو چې موږ ته دا کلاس په اردو باندې واخلي. هغه بیچاره بیا د تکرار کوي وسیله د هغوی لپاره خلاص شو غني شروع کړو. اوکې سر کا ویډیو به شیر کړئ موږ هغه ویډیو ضرور تاسو سره به ویډیو شیر شي، ریکارډینګ وکړو. تاسو سره به ضرور ویډیو شیر شي. او تاسو بالکل ټینشن ما کړئ چې تاسو څه هم مسله وي کنه، نو تاسو صرف ماته ټیکسټ کوئ. که زه ټایم تاسو ته ریپلای نشم کولای، نو تاسو ته بیا زه خپل کال کوم چې څه هم تاسو کوېسچن یا به موږ سورټ آوټ کوو. ښه اوکے سر परेशान की मैंने इंशाल्लाह अल्लाह दे खैर की। हाँ चलो क्लास, यहाँ पे मैं फिर इजाजत ले लेता हूँ, मैंने कुछ पैकिंग वगैरह भी करनी है। और अगर किसी को फिर भी कोई मसला वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह है, तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी।
Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. हाँ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम. اتل استاد اکرام دراني خو ته غلې دی به غږ کنه دا څنګه ځان یې کړ